Good evening, everyone, and welcome back to ICE platform. Thank you for joining us today. I hope my voice is audible. For those who are joining us for the first time, welcome to our weekly webinar industry series, where every Tuesday we connect with professionals, experts, and learners from elevators and escalator industry on one common platform. While we wait for a few more minutes for our participants to join in. I'll take a couple of seconds or sorry minutes to explain what does IC do and how do we work with the industry. Let me share my screen. I hope my screen is visible. So ICE platform is designed to share practical knowledge, industry insights, and a real world experience that can help you grow professionally and stay updated with the latest developments in the industry. We are glad to see participants from different location, and we truly appreciate you taking time out of your busy schedule to learn, to gain insights, and upgrade your knowledge with us today. So this is an initiative by IC Ventus. IC Ventus also organizes exhibition, trade shows, industry events. We create platform that support learning, collaboration, and business growth. IC Ventus has become a trusted bridge connecting regional market with global opportunities. Our upcoming shows. So first is IC India 2026 will be held on the 3rd, 4th and 5th December in Delhi, proudly making the capital city the host of this year's edition. With the strong industry support, IC has grown to become the world's fourth largest exhibition for elevators and escalators, reflecting the trust and collaboration of the entire industry. This year's expo is planned across a massive area of 40,000 square meter, featuring around 350 plus exhibitors, making it one of the largest gathering of the vertical transportation in India. So get ready and plan your visit accordingly. We recommend at least to plan for 2 days visit to experience the scale of this expo. I'll be thrilled to share the success of our event, IC Quiz and Symposium, which we did in February 13th and 14th, where industry leaders, professionals, students came together for 2 powerful days to share the share knowledge, innovation, and collaboration. And the excitement continues. We proudly announce the second edition. I see the monsoon edition is in Chennai, featuring quiz, symposium, and a dynamic industry expo happening on August 5th, 6th, and 7th, 2027. So, why monsoon edition? This monsoon edition reflects Chennai's regional weather calendar held before the monsoon season. It creates a perfect time for the industrial professionals to network for upcoming projects and discuss solutions before the operational slowdowns typically caused by the heavy rains. Our next show is IC Africa 2027, will be held from 24th, 25th to 26th November at KICC, Nairobi. As you may know, Kenya is emerging to one of the fastest growing market in Africa for infrastructure and urban development,
creating a significant opportunity for the elevators and escalator industry. In this context, I see Africa 2027 will bring together the global manufacturers, suppliers, industry leaders to showcase safe, innovative, and sustainable vertical mobility solutions and drive growth across Africa's vertical transportation sector. Moving on to our today's session. So, in today's session, we will be doing little different way, more like a conversation than a presentation. So you will get a real insight straight from the expert. So today we are talking about smart urban parking solutions with a special focus on a mini rotary system. We have with us Mr. Rohit Shetty. Rohit sir, you may on your camera. So he is the manager production and planning at Tedra Automotive Solutions Private Limited with over 12 years of experience in automotive and infrastructure, specialized in MLCP, which is a multiple level parking, car parking, project execution and planning. This will this conversation with the Mr. Rohit will help us get a connect with the technical expert and gain practical knowledge from his experience. So we are delighted to have you, sir, with us today, and we look forward for your valuable insights. I will, Thank, uh, I will thank, thank you, Neelam, uh, for sir, giving me this opportunity. yes. Could you start with sharing more about you and about the journey of Tedra, like how it started and how it evolved over the time? Uh, Neelam, myself, Rohit Shetty. I'm working with Tedra Automotive Solutions Private Limited from last 12 years. I joined Tedra as a engineer, and I have carried forward the activities like production, planning, and product development activity. And currently, I'm taking care of manufacturing activities like production, and I'm regularly involving in new product development also. And coming to the Tetra Automotive Solutions, Tetra Automotive Solutions is a multi-level car parking system manufacturing company, and solution we are generally into the solution providing for infra projects. And let me uh, show our manufacturing units also. So, it's on the desktop. Uh, this is our manufacturing unit. Are you seeing my screen? Uh, uh, Yeah. no, you can we can see your screen, but it went back. Okay. Yes, now Now, we can see your screen. okay. This is our manufacturing unit. We have two manufacturing units in Moigaon location near Chakan. Uh, uh, Up to 5 acres of land spaces we are available. Here we are manufacturing simple stack parking systems, puzzle parking systems, and in plant also we are having a laser cutting solutions, bending solutions, completely powder coating units also we are in-house providing. And coming back to one more unit we are having, in that we are manufacturing a fully automated systems like tower parking, rotary parking systems, and shuttle parking systems. And these are our product range. In that you can see stack parking and
triple stack. These are the two products. It's a dependent type of parking system. In one car space, we can park up to two cars, or three cars also we can park. It can utilize up to 50% of the space what we are available. And in that pitch stack what you are seeing, this is a independent type of parking system. If pit is available in the area, we can accommodate two cars, and that completely independent. For above car we can retrieve without removing the mid car. Similar way, we have puzzle type parking system. It is a semi-automated type of parking system. In that, we have hydraulic type of puzzle parking system. In that, pit puzzle also is available, and overground puzzle and back-to-back puzzles also we can deliver. And similarly, for higher number of cars, we can provide mechanical type of parking system. In that also, we can put up to three cars in a pit, and up to six level parking we can uh, provide a solution. This is a semi-automated parking system, and complete automated parking system we are having in our range. That's the tower parking system. In that, structural tower parking and RCC tower parking, the both we can provide a solution. And one more thing is there, that card type parking system. In card parking system, it's just like a tower. In that, lift also available, and horizontal movement also available. And coming back to one more automated parking system, it's a rotary parking system. You can see in two car spaces, we can accommodate from 8 cars to 20 cars in a single space. Great. That's the major advantage of rotary parking system. We will come back to this topic later. Okay, So and now, can I ask you, like, let us know what kind of projects does Tedra is working today, and what type of project do they usually handle? करंटली हम लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंफ्रा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ही हम बोल सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिल्डर्स के साथ एसोसिएटेड है हम लोग. सो मार्केट में हम लोग जो प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, हम लोग जनरली प्रिफर करते फ्रॉम द इनिशियल स्टेज से ही हमारे साथ जो आर्किटेक्ट्स है, बिल्डर्स है, वो लोग जुड़ जाए. So we can provide a better solution. Tedra is known for customized parking solution. We can provide any type of customized systems to the customers. We can accommodate the for the parking solutions. So उसका कंपैरेटिव हम इनिशियल स्टेज से ही जुड़ा रहा तो हम लोग प्रोडक्ट बेटर वे से उनको कन्वे कर पाएंगे. हम Correct, कौन सा correct, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज के ऊपर हम उधर इनिशियल इनिशियल फेज से हम उनको सजेस्ट कर सकते correct. हैं. इट्स फॉर बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स आल्सो. सो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना है तो हम लोग फ्रॉम द स्टार्ट साइट, हमको जो इंक्वायरी आता है उसका साइट सर्वे करके हम लोग एक इनिशियल प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं. वो प्रपोजल में हम लोग जो भी वो साइट के लिए फिट रहेगा वैसा पार्किंग सॉल्यूशंस हम उनको प्रेजेंट कर लेते हैं. उसमें उसके बाद उसका साइट सर्वे कंप्लीट होने के बाद हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स बना लेंगे. उसको हम मैन्युफैक्चरिंग को रिलीज करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग जो मिनिमम लीड टाइम्स रहेगा उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्लांट में होता है. उसके बाद हम साइट में उसको डिलीवर करके उसको जो इंस्टॉलेशन लीड टाइम है उसके हिसाब से हम इंस्टॉलेशन करके हैंड ओवर, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स भी ऑन साइट ही करके हैंड ओवर करते हैं. ये प्रोजेक्ट नॉर्मली हमारा कैरी आउट होता है. Okay. So, my next question will be, so now I'm curious, like, about how all like this all things come together in a real project. So, Uh, like in a real project, if you are dealing with how the process will be.
जस्ट जस्ट सिमिलर वे मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया आपको, उसके हिसाब से हम लोग ईआरपी सिस्टम्स फॉलो करते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट रन करने के लिए। ईआरपी इसमें हम सिस्टम्स याज इन? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ओके सॉफ्टवेयर हम ओके, लोग हाँ हाँ हाँ। अपने लिए डेवलप किया है। उसमें जो स्टार्ट फ्रॉम द जैसा ऑर्डर ऑर्डर पंच हो जाता है, उधर से लेके हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और उसका जो सर्विस रिपोर्ट्स वो सब है, उसका जो फीडबैक्स है वो सब हम उसमें मॉनिटर करते हैं और लॉन्गली उसको मेंटेन करते हैं। जो भी कमोडिटीज है उसका लाइफ साइकिल बोल सकते हैं हम, जनरली उसका लाइफ साइकिल हम मॉनिटर करते हैं। Okay, let's like now talk about the main system, which is rotary parking system. Can you आप थोड़ा उसमें explain कर सकते हो what is rotary parking system is all about? डेफिनेटली मैडम। हम टेड्रा ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट ऑल 2 डेकेड से मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में डिलीवर कर रहा है। सो उसमें रोटरी पार्किंग भी हमारा पुराना ही प्रोडक्ट है। रोटरी रोटरी पार्किंग इज जस्ट लाइक ए वर्टिकल ऑटोमेटेड पार्किंग सोल्यूशन है। इट्स आप ये बोल सकते हैं फेरी व्हील्स। वो उसमें हम कार पार्क करके अप एंड डाउन लूप में मूवमेंट करते हैं, आप जनरली उसको बोलना है तो मैरी गोल्ड टाइप ऑफ पार्किंग सिस्टम है। इसके अलावा जो रोटरी रोटरी पार्किंग जो वर्क होता है वो 2 कार स्पेसेस मैंने पहले ही बताया। कन्वेंशनल पार्किंग में ऑलमोस्ट ऑल 20 to 30 स्क्वायर मीटर का एरिया लगता है एक कार पार्क करने के लिए। उसके जगह पे हम 50-55 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर, मतलब 5.7 बाई 6.7 मीटर के एरिया में हम अप टू 20 कार्स हम पार्क करके उधर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेजेस हम देखना है तो हमने हमने अभी जो लास्ट ईयर से जो लॉन्च किया है, रोटरी 4.0 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसमें हमने मेजर की फीचर्स में बात करना है तो हम वो प्रोडक्ट को फास्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ए मॉड्यूलर डिजाइन है, और फिक्स टू इजीली फिक्स कर सकते हैं हम साइट में वो चीज को। और सेफ्टी फीचर्स के ऊपर हमने बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर काम किया हुआ है। उसमें एडिशनल फेंसिंग्स दिया है और रोलिंग शटर्स दिया है। इसके वजह से अभी हमने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में नहीं तो कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में वो लगाया है, तो उसमें किड्स किड्स अंदर नहीं जा सकते इजीली, पेट्स अंदर नहीं जा सकते, ये सब चीजें अवॉइड अवॉइड कर सकते हो। ये चीज का एडवांटेजेस है। और रोटरी पार्किंग में हम रेन शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। रेन शील्ड का एडवांटेजेस ये है, सिस्टम फुली रेन प्रोटेक्टेड रहेगा, फुली इन द सेंस इसका जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, गियर बॉक्स हो गया, उसका जो सेंसर्स है, ये सब चीजें कंप्लीटली रेन प्रोटेक्टेड रहेगा। सेंसर्स को भी हम लोग एसएस का स्टैंड प्रोवाइड किया हुआ है, वो उसके वजह से वो इजीली रस्ट नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ आ सकता है। जो सेंसर्स और गियर बॉक्सेस यूज किया है वो ऑलरेडी आईपी प्रोटेक्टेड है। IP65 तक हम उसमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके वजह से डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ का रेजिस्टेंस उसमें आया हुआ है। और सिमिलरली जो एडिशनल फीचर्स हम लोग ने 4 पॉइंट वो सिस्टम में दिया हुआ है, एक तो एंटी एंटी स्क्रैच डिवाइस है। एंटी स्क्रैच डिवाइस आपको एक्सप्लेन करना है तो अभी नॉर्मली जब कार इस रोटरी पार्किंग के ऊपर हम पार्क करते हैं पैलेट्स के ऊपर, वो कार डोर इन केस ऑफ लॉक नहीं हुआ प्रॉपरली, इन केस ऑफ रोटेशन में ऑसिलेशन में डोर ओपनिंग होने का चांसेस है, ये मे कॉज एक्सीडेंट। सो हमने उसके लिए एक डिवाइस इम्प्रूव किया है। वो एंटी ओपनिंग एंड एंटी स्क्रैच डिवाइस, इसको हमने नाम नाम दिया हुआ है। उसमें पैलेट में जब गाड़ी पार्क हो जाएगा, ड्राइवर सिस्टम से बाहर आने के बाद, डोर लॉक होने के बाद वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। इन केस ऑफ रोटेशन में डोर ओपन भी हुआ, वो डोर को फुली ओपन होने नहीं देगा। वैसा चीज उसमें इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। और ड्राइवर असिस्टेंस के लिए कुछ चीजें इम्प्रूवमेंट किया है। एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ड्राइवर असिस्टेंस का इंडिकेशंस प्रोवाइड किया हुआ है। और मेजरली आप रोटरी टाइप पार्किंग सिस्टम को आप जानना है तो
आप जब उस पैलेट के ऊपर जब कार पार्क करते हैं, आप फील कर सकते हैं उसमें थोड़ा ऑसिलेशंस रहता है। मतलब आप इवन मेरीगोल्ड में भी आप जब अंदर जाते हैं वो टाइम में वो झूलता है, वो ऐसा हिलता करेक्ट है। करेक्ट सो करेक्ट। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आप ये कह सकते हैं एक एंटी स्विंग डिवाइस हमने पैलेट के नीचे प्रोवाइड किया। जब कार एंट्रेंस और एग्जिट के टाइम में वो डिवाइस एक्टिवेट रहेगा। जब भी आप कार उसके ऊपर पार्क करेंगे वो पैलेट को हिलने नहीं देगा। इट स्टिक विद द पैलेट एंड इट वोंट रोटेट। वैसा वैसा उसका फंक्शन है। सो इससे जो ड्राइवर भी कार से उतर के बाहर आएगा उसको भी वो फियर नहीं रहेगा, पैलेट हिल रहा है मैं गिर सकता हूँ। वो चीज 4.0 सिस्टम में डेवलपमेंट में आया है। सो इसके अलावा मेजरली और एक चीज हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, वो है मैनुअल रिट्रीवल सिस्टम। मैनुअल रिट्रीवल सिस्टम इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब पावर शट डाउन है, माइनर ब्रेक डाउन आया हुआ है, वैसा चीज में हम मैन्युअली व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। वो चीज का डेवलपमेंट हमने 4.0 सिस्टम में किया है। दैट्स द की नाइस। की हाँ, फीचर्स हमने रोटरी पार्किंग में डेवलप किया हुआ है मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग, लाइक एक्सप्लेन करने के लिए पूरा डिटेल में इन सिंपल वर्ड्स अबाउट अबाउट दी दिस सिस्टम, रोटरी पार्किंग सिस्टम। सो मेरे को एक इस पे क्वेश्चन है कि is this the what do you say, the platform on which the या car is placed, those are adjustable? Because we have, in case we have like different sizes of cars, so वो adjustable होता है क्या platform? अभी हम रोटरी पार्किंग को 3 ग्रिड्स में हमने डिवाइड किया है। उसमें एसयूवीज के लिए हम हमारा नॉर्मल हाइट हमने प्रोवाइड किया है 2175 मिलीमीटर्स, एंड सीडन के लिए 1875 मिलीमीटर, और स्मॉल एसयूवीज हम बोल सकते हैं आज के डेट में वो वाला 1725 का हाइट में हमने उसको ये किया है। पैलेट विड्थ हमने नॉर्मली सभी इसको 2.3 मीटर का विड्थ दिया हुआ है, और पैलेट लेंथ भी 4.3 मीटर के आसपास हमने उसको डिजाइन किया हुआ है। सिर्फ हाइट का कंस्ट्रेंट्स हमने ये 3 पोर्शन में डिवाइड करके यूटिलाइज कर डिजाइन ऐसा डेवलप किया है। Okay, great. So so what you like, how you decide कि कौन सा parking system लगना चाहिए, and why not tower parking in place of mini parking की जगह पे रफ? हाँ, टावर और रोटरी बोथ आर फुल्ली ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम। ओके। तो आप एडवांटेज दोनों सिस्टम में इक्वली 1 बाय 1 एडवांटेजेस है। टावर पार्किंग में कैसा है, वो हाई जब फ्लोर राइज हमको ज्यादा मिल रहा है, फ्लोर राइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो केस में हम टावर पार्किंग कर सकते हैं। टावर पार्किंग को भी आप जैसा रोटरी मैंने बताया वैसे ही टावर पार्किंग के बारे में भी बताना है तो हम 3 कार्स कार स्पेस जो है 3 कार कन्वेंशनल मेथड में जो खड़ा कर सकते हैं, उसके जगह पे हम अप टू 60 कार 80 कार्स तक हम पार्क कर सकते हैं। उसमें सिंगल लाइक लिफ्ट रहेगा, टर्न टेबल रहेगा, वो पोजीशन में लेके जाके गाड़ी को पार्क करता है। टावर पार्किंग का वर्किंग प्रिंसिपल वैसा है, फ्लोर अच्छा। वाइज पार्किंग करते जाता है। सो कंपैरेटिव टावर में जो इंस्टॉलेशन टाइम पीरियड है वो नॉर्मली 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स का इंस्टॉलेशन टाइम पीरियड है। मेनली अभी रोटरी में आप देख रहे हैं, हम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये प्लग टू फिक्स टाइप ऑफ पार्किंग है, उसके वजह से हम 7 डेज में हम इसको इंस्टॉलेशन करके डिलीवर कर सकते हैं। सो इसका मेजर एडवांटेज ये भी है, ये भी एक चीज है। और इजी मेंटेनेंस ये है, और नंबर ऑफ मोटर्स इसमें जो यूज होगा रोटरी में, ये सिंगल हम्म। मोटर्स में ड्राइव Makes sense. ड्राइव दे रहे हैं। ये एडवांटेजेस है। So to like मिनी रोटरी के रिगार्डिंग, आई वांट टू नो आपके मतलब बैकएंड में क्या क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्लांट मतलब तक कैसे काम होता है? ओके, मिनी रोटरी हम जो मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट ऑल 25 डेज में हम लोग इनोस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक रोटरी। उसमें हमारे पास इनोस फैसिलिटी में लेजर कटिंग बेंडिंग फैसिलिटीज है। इसमें मेजरली स्ट्रक्चरल पार्ट का भी ये है, उसके लिए हम बैंड सो ट्यूब लेजर ऐसा फैसिलिटीज हमने ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है। उस और रोबोटिक वेल्डिंग फैसिलिटी भी हमारे पास है। सो उसमें हम फिक्सचर में इसको फ्रेम रेडी कर लेते हैं,
उसका जो ड्राइविंग चेन्स है ये भी फैब्रिकेटेड ड्राइविंग चेन्स रहता है। और मैक्सिमम असेंबलीज भी हम इनोस इनोस करके लेते हैं। उसका चेन असेंबली हो गया, फ्रेम असेंबली हो गया। उसके बाद पैलेट्स के बारे में बताना है तो हमने कम्प्लीटली चेकर्ड पैलेट्स यूज किया है। उसके वजह से व्हील स्लिपेज भी उसका अवॉइड होता है। और वो हम बेंडिंग में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको। और स्ट्रक्चर जो है हम पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग से पहले जब फैब्रिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसको शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस करते हैं। शॉर्ट ब्लास्टिंग इज ए एक प्रोसेस है जो स्ट्रक्चरल स्टील में स्केल्स रहता है, ब्लैक स्केल्स, जब मैन्युफैक्चरिंग हॉट रोल्ड होकर निकलता है उसका ब्लैक स्केल्स। और उसमें एडेशन, जब पेंटिंग करेंगे पेंटिंग का एडेशन प्रिपरेशन करने के लिए शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस होता है। उससे हम शॉर्ट ब्लास्टिंग अप टू 50 to 60 माइक्रॉन्स का पेनेट्रेशन करके लेते हैं। उसके बाद उसको पाउडर कोटिंग का पेंटिंग करते हैं, स्ट्रक्चर्स को पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग हम 100 to 120 माइक्रॉन्स का डीएफटी उसमें अचीव कर लेते हैं। प्राइमर कोटिंग और फिनिश कोट का पेंटिंग होता है उसमें 100 to 120 माइक्रॉन्स का डीएफटी अचीव होता है। डीएफटी मीन्स पेंट का थिकनेस, ड्राई फिल्म थिकनेस हम बोल सकते हैं। ओके ओके। इससे जो एनवायरमेंटल कॉजेस जो भी उसमें रस्ट लाइक आ सकता है, रस्टिंग, करेक्ट करेक्ट। हाँ रस्टिंग, ये सब चीजें उसमें अवॉइड हो जाएगा। और लॉन्ग लास्टिंग दिखेगा सिस्टम, अट्रैक्टिव भी दिखेगा। और आप ये सभी चीज को मेजर कर सकते हैं सॉल्ट स्प्रे आवर से। मतलब आप ये कंपोनेंट को पेंट मारने के बाद सॉल्ट का कंटेंट में डुबा के रखा तो ऑलमोस्ट 1000 आवर्स वो सॉल्ट स्प्रे रेजिस्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट में। करेक्ट करेक्ट। इसको कन्वर्ट किया तो ये बहुत बड़ा लाइफ साइकिल उसको प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हम जो भी इसका क्रॉस मेंबर्स है, पैलेट्स है, पैलेट्स का कनेक्टिंग मेंबर्स है, ये सब हम पाउडर कोटिंग करते हैं। और जैसा मैंने पेंटिंग के एप्लीकेशन के लिए 1000 आवर सॉल्ट स्प्रे बोल रहा हूँ, वैसे ही जो पाउडर कोटिंग मेथड में जब हम करने जाते हैं वो 1500 to 2000 आवर्स का लाइफ साइकिल वो प्रोवाइड करता है, सॉल्ट स्प्रे आवर वो जनरेट करता है। सो वो उसमें भी हम 100 to 120 माइक्रॉन्स का डीएफटी मेंटेन रखते ही है। सो ये इस टाइप में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होता है। करेक्ट, वो बहुत हेल्पफुल होगा जो रेसिडेंसी जो नियर टू सी लेवल रहते हैं, टू दैट यस सॉल्टी डेफिनेटली, एयर। हाँ। डेफिनेटली वो। करेक्ट। और सिस्टम मेंटेनेंस भी बहुत कम आएगा उसमें। इजीली ओके। मेंटेनेंस कर सकते हैं उसको। सो पुटिंग दैट एट पॉइंट, नेचुरल कैलामिटीज के पर्सपेक्टिव से अगर कोई अर्थक्वेक के रिलेटेड होगा तो क्या सिस्टम, मतलब कैसे आपका स्ट्रक्चर हैंडल कर ओके, सकता है उसको? जब हम रोटरी पार्किंग प्रपोज करते हैं तो हम फर्स्ट फेज में उसको साइट में हम ये देते हैं उसका फाउंडेशन ड्राइंग्स। जो ओके। फाउंडेशन उसका होना चाहिए, वो उसका कैसा उसका कंक्रीट ग्रेड रहना चाहिए, उसको रिबरिंग कैसा करना चाहिए, वो चीज़ हम इनिशियली प्रोवाइड कर लेते हैं। सो वो जो उसका फाउंडेशन है, सिस्मिक रेजिस्टेंस हो गया, वो सब चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट करने के हिसाब से हम उसको उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो रोटरी पार्किंग का डिज़ाइन हम जो डेवलप करते हैं जो सप्लाई करने के लिए, उसमें हम विंड फोर्स एनालिसिस किया रहता है। जो भी उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो सब करके उसमें विंड का इम्पैक्ट क्या आएगा, वो चीज़ को कम हम कैसा विथस्टैंड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कंसिडरेशन में लेके डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई वांट टू, कैन यू इलैबोरेट जो आपने एक पॉइंट बोला था जहाँ पे मैन्युअली हैंडल होता है फॉर पावर फ्लक्चुएशन या पावर शटडाउन होता है, वापस ऑन होता है, सो कैसे आप इलैबोरेट कर सकते हैं वो पॉइंट को वोल्टेज अभी इशू की वजह से? हाँ। ये इन केस ऑफ अभी 12 कार्स 16 कार्स का जो पार्किंग सिस्टम है रोटरी टाइप का, उसमें अभी कुछ मैकेनिकल फेल्यूर्स है, नहीं तो पावर पावर का ही फेल्यूर है। नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं पावर बैकअप के लिए जनरेटर्स रहेगा, नहीं तो यूपीएस टाइप डिवाइसेस उसमें इनकॉर्पोरेट करने का सजेशन दिया हुआ रहता है। लेकिन इन केस ऑफ मैकेनिकल फेलियर्स, अभी वो मोटर मोटर ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, हम बैकअप रह के भी कुछ नहीं होगा, वो कंडीशन के लिए मैनुअल रिट्रीवल दिया हुआ है। मैनुअल रिट्रीवल जो गियरबॉक्स का मोटर है उसी उसी के साथ ही
अटैचमेंट रहता है, उसको एक फ्लाईव्हील नीचे दिया हुआ रहता है, सो पर्सन उसको रोटेट करके पैलेट को रोटरी मोशन में घुमा के उसको नीचे मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट में लेके आ सकते Okay. There are a few questions from our attendees here. हैं। ओके, We will हम बीच बीच में इसको डिस्कस करते हैं with ठीक है मैम। our conversation too. ठीक है, so first is anonymous questions like they are asking how to give order. Are you available in GEM procurement portal for government procurement projects? Currently, we are available in Google platforms and LinkedIn everywhere. Our presence is there. So हम लोग हमारा कांटेक्ट डिटेल्स एट द एंड हम डिस्प्ले भी कर लेंगे, जो हमारा मेल आईडी से कांटेक्ट डिटेल्स है। सो और हमारा वेबसाइट भी अवेलेबल है, सो उसमें जाके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो उसके थ्रू हम उनको भी कम्युनिकेट कर लेंगे। ओके सर। रोहित जी, आप बता सकते हैं कि डू वी हैव लाइक इन इंडिया डू वी हैव एनी स्पेसिफिक कोड और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट से कि डिजाइन और इंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम के लिए? फिलहाल मैकेनाइज्ड पार्किंग सिस्टम जो ऑटोमेटेड रहने दो, सेमी ऑटोमेटेड रहने दो, मैकेनाइज्ड पार्किंग सिस्टम में कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक गवर्नमेंट का कोई उतना रेगुलेशंस नहीं है, जैसा कि अपना पैसेंजर एलिवेटर्स में है वैसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सो गवर्नमेंट इज डेफिनेटली थिंकिंग ऑन दैट, उसमें कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। सो इन कमिंग फ्यूचर्स में वो आ जाएगा, उसके लिए भी रेगुलेशंस रहेगा। करेक्ट। व्हाट यू थिंक दैट क्या फोकस रहना चाहिए फॉर अ पार्किंग सिस्टम? गवर्नमेंट किस चीज पे लाइक प्रॉपर कोड बनाना चाहिए? मेनली व्हीकल सेफ्टीज के लेके उसके रिलेटेड चीजें होना चाहिए। और और दूसरा जो चीज है उसमें स्पेस कैसा मिनिमाइज करके उसको यूटिलाइज करना चाहिए, वो चीज के उस पे चीजें बनना चाहिए। और मेरा मेरा मेजर पॉइंट रहेगा सेफ्टी कंसर्न्स उसमें क्लियरली रहना चाहिए भाई, ऐसा ऐसा हम काम काम करना चाहिए। ये सेफ्टी फैक्टर्स हमको फॉलो करना ही चाहिए, सभी वो गाइडलाइंस में आना चाहिए। ओके सर। व्हाट यू थिंक कि फ्यूचर व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ अर्बन पार्किंग सिस्टम? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में ही देखो, बैंगलोर में देखो, वी हैव लाइक स्पेस का तो बहुत मारामारी चल रहा है। सो व्हाट यू थिंक कि व्हाट विल बी अ ये फ्यूचर फॉर अर्बन एक इश्यू पार्किंग तो सिस्टम? आप भी फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रहा हूँ। अभी अर्बन एरियाज देखना है तो मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, ये सब जगह पे कार ओनर्स तो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। कार करेक्ट। परचेसिंग अच्छा खासा करेक्ट। हो रहा है, सब लोग कार खरीदने के ऊपर कंसंट्रेशन दे रहे हैं। उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ होना चाहिए था, वो ग्रोथ पे थोड़ा लिमिटेशन है, वो फेस पे नहीं हो रहा वो। सो मेरा ये रहेगा, अभी उसके वजह से क्या होता है, हम जो पार्किंग करते हैं, रोड साइड पार्किंग करते हैं, उससे एक तो ट्रैफिक जाम्स बढ़ रहा है। रोज रोज शाम को हम वो चीज देख रहे हैं, इवन संडे हम मॉल पे गए तो भी उधर वो सिनेरियोस हम फेस करते ही है। करेक्ट। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, कंप्लीट ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम्स उसमें प्रोवाइड कर सकते, वो भी पब्लिक स्पेसेस में उसका एडवांटेजेस बहुत ज्यादा मिलेगा। करेक्ट। दिस ये स्पेस बढ़ेगा जब तक कंपनीज लाइक यू, जब तक आप ये नॉलेज स्प्रेड नहीं करोगे विद द कॉमन पीपल, तब तक ये आई थिंक सो ये ग्रो। डेफिनेटली मैडम, हम ये हाँ। प्लेटफॉर्म को उसी के लिए यूटिलाइज करना करेक्ट। चाहते हैं। करेक्ट। करेक्ट। एंड योर मेन फोकस इज द आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स कनेक्ट करें और अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेटली वी हैव सिस्टम वेरी गुड कैसे यूज करना सॉल्यूशंस। चाहिए। करेक्ट। सो थैंक यू रोहित सर कि आप इतना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ओके मैडम। वी विल नाउ गो टू अ क्यू एन ए सेशन। सो ओके, किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हो, एनी क्वेश्चंस टू आस्क टू रोहित सर, यू कैन पुट इट डाउन प्लीज। So, a question is from Mr. Ravindra. Do you have a sole agent or distributor for Terra products for export market?
even like country like Sri Lanka? No, madam. If he wants our product in Sri Lanka, he can directly contact us in through our website. Okay, We you don't have will. any distributor or agent there. No, no. Oh, okay, okay. So we are unable. There is another question from Mr. Ravindra. We are unable to understand your language. Acha. So they want Oh, in English. okay. Maybe we can. What you say? We can do it in another session. We can do it in English. We will maybe Okay. in Actually, another. if Mr. Ravindra can communicate us with through our email ID or through phone calls, so we can definitely Correct. So, contact. Rohit sir, you may share your or you may share the Tedra's contact details so that he can connect with you later. Uh, Mail ID was sales@tedraauto.com. Or else you can take contact number from website also, www.tedraauto.com. I'll move on to next question. What will be the cost, typical cost for this parking system? The cost we can say up to 4 lakhs per car for rotary type parking system, but we can discuss on table what best solution we can provide. Uh, Apart from the cost, we can discuss in this platform what solution people required, or how we can manage, how intelligently we can manage those systems. Our next question is from it is an anonymous question. So, is the maintenance intensive? Compared to other parking systems, the rotary parking is less maintenance product, because it has only one drive mechanism in gearbox, and we can regularly maintain with oiling and greasing, so it can be managed very well. How often do we maintain the system? uh, once in a month. Okay. Uh, Next question is from Mr. Vilas. What is a budget price for a 16 car rotary system, parking system? I think so. You Ma'am, can discuss this later, yes, Vilas sir. definitely, you just share our mail IDs and contact details so we can communicate him Correct, correct. on this. Next question is from also Vilas sir. What is the life for car parking rotary? uh, 25 years we can bid, ma'am. So next question is also from him. What is a payback on investment for rotary car parking? Currently, we have calculated 1.5 rupees to 3 rupees operating cost for a single pallet, uh, considering a unit price of current is 10 rupees. So we can calculate on that basis per car. Ma'am. Oh, okay. I think so. Can you, because many of them are asking your contact details, I'll, Uh, can you type it down? yes, definitely. You can share your or your company details, whichever is comfortable. Any other 1 second. questions, attendees, you want to ask Mr. Rohit? Contact details. Okay. Rochak Dikasan. 1 second, ma'am. Yes, yes, yes.
I think so. You can type it down in the Q&A box. Okay. I think you can't edit in this. Right, sir? There is Can no you chat can you tell me? box. I'll share it with him. Yeah. www dot www tedra 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 Tetra AUTO auto AUT AUTO .com. .com and And you can take mail email IDs ID sales sales @tedraauto.com at the rate TEDRA Tetra AUTO AUTauto.com. planning @tedraauto.com PLANNING 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 @ at the rate tedraauto.com. tedraauto.com. Okay, you can take number also 74 74 200 200 01 01 308. 308. Yes. Okay. Any other questions? I think so. We don't have any other questions. So I thank Mr. Rohit to sharing your insights of Tedra parking solution and of course mini rotary parking solutions and explaining it in a very simple way. And we really appreciate your efforts, sir. Yes, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity, and I'm really happy I can share my thoughts in this platform. That definitely useful for others also. Thank you so much. Thank you, sir. And I also thank to all our attendees who are joining us today. And we hope this session gave you a valuable insights about the modern parking solutions and the future systems. So let's stay connected. And just a reminder that our session happens every Tuesday. So our next session will be on 31st March. And we look forward to seeing you in our upcoming sessions. Thank you all and Definitely. have a good evening. Thank you, Rohit, sir. Okay, thank you so much. Bye. Bye.